वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट इख्तिताम हो चुका है। कल एक बहुत हैपनिंग दिन था और आपने वो हैपनिंग हमारे साथ एंजॉय की होगी। आज उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और भी क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और वाकई वो कहते हैं ना कि एक कोई बड़ा अच्छा दिन गुजरता है, उसके बाद आप जब रात गुजार के सुबह उठते हैं तो एक फीलिंग होती है समथिंग हैज़ गॉन राइट, कुछ ठीक हुआ है ज़िंदगी में। तो आज सुबह वही फीलिंग हो रही थी कि कुछ कल बड़ा अच्छा हुआ है। फिर चंद सेकंड में आपके जहन में आना शुरू होता है कि यार पाकिस्तान ने कल क्या मिरेकल कर दिया। द मिरेकल एट नेशनल स्टेडियम कराची। ऑस्ट्रेलियन आर स्टिल विनलेस हियर एट द नेशनल स्टेडियम एंड दे विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर इयर्स नाउ। बट देन एक डिबेट है, एक अलग अलग डिबेट है अदील। मिरेकल जब मैं भी ये मेंशन करती हूँ तो इधर उधर से जवाब आता है कि मिरेकल तब होता जब जीत होती। इस वक्त ड्रॉ है, सो इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। वो कहते हैं ना सवेरा, हाइंडसाइट इज 2020। आप जिस वक्त पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया था पहले सेशन में, चौथे दिन कोई आपसे कहता 5.5 दिन बैटिंग कर, 5.5 सेशंस बैटिंग कर रही है, यू वुड हैव जस्ट सेड it's nothing less than a miracle that Pakistan would bat out these 5.5. तो अब जब ड्रॉ हो गया मैच, people are saying see we did not win the game. It does not qualify to be a miracle, but I think जो भी था मैच यादगार। But as Pakistanis जो हम बात कर रहे हैं, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हमने आपके पास यहाँ पे आपको बताया। आपने कल देखा भी हम कितने एक्साइटेड थे। वो आखिरी लम्हात आपने हमारे साथ एंजॉय किए जब हमने वॉच अलॉन्ग किया उस मैच का। बट अब जरा देखते हैं, सुनते हैं कि जो फॉरेन मीडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से मीडिया पाकिस्तान आया हुआ है, उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, व्हाट डू दे थिंक कि कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट राइटर हैं पीटर लालोर और उनसे गुफ्तगू हम करेंगे। सो पीटर, वेलकम टू गेम सेट मैच। It's an honor to be here, Swira. Peter, how are you feeling? You're in Lahore now? Very excited to be in a new place. We had a great time in Karachi, we had a great time in Rawalpindi, and now we're in Lahore, and we hopefully will have a great time in Lahore. So you enjoyed watching the test. Yesterday you were there at the stadium, and that last day, were you expecting that Pakistan would pull the complete day and or they would just collapse at any point of time? Anything could happen in Test match cricket, but no, I did not expect Pakistan to last. That's a record, 170 odd overs and a record innings by your captain Babar Azam. It was an extraordinary day's cricket. It's perhaps one of the best days of cricket I've ever seen. It's certainly up there among the best days of cricket I've ever seen. Hi Peter, Adil here. Peter, the Test match cricket timings in Pakistan is pretty suitable for Australia because that's like covers the prime time television timing there in the afternoon and in the evening. So how much attention this test series is getting in Australia, and how much this test series is covering the sports conscious in a very sports mad country? Yes, well, it's just the start of our football season in Australia, but there is a lot of interest in this series because, as you guys well know, it's 24 years since our side has played in Pakistan. New Test captain Pat Cummins, who's only had one series. This is a team that's captured the nation's interest, particularly with its performances in the Ashes, where it beat England 4-0. Thus far, it hasn't beaten Pakistan, nor has it been beaten. But Australia is fascinated by this cricket team, fascinated by its new captain, and by watching cricket in Pakistan after such a long time. Peter, when we talk about Pat Cummins, you've spoken about Pat Cummins, but there's this school of thought that maybe he missed a trick by not putting follow on Pakistan at the very day, the third day, and they could have maybe won this test match. What's your take on that? Well, my Urdu is not very good, but I think I heard you say earlier that hindsight's a 2020 vision. In retrospect, perhaps it would have been better, but look, I liked the tactic. I liked the idea of giving the bowlers a bit of a spell that night. Sometimes you see the bowlers, when they turn around and bowl in another innings, things don't necessarily happen the way they were happening. Things that happened in that innings, wickets fell because of the reverse swing. Now, you weren't going to get reverse swing with the new ball. So that reverse swing was gone. We see that the Pakistan openers are excellent batsmen. In fact, the whole Pakistan top order is excellent. And I also like the idea of
putting the side back out there so that the openers have to think about batting again, and then they come back in the morning. They don't know when they're going to bat. They only get 10 minutes to prepare for the change round. So I like the tactic. It didn't work this time, but gee, it came really close to working, didn't it? So Peter, has the track at National Stadium Karachi settled the debate about the poor, unsporting wickets in the Test cricket? Well, I think I heard you say that, asked me if it was a better wicket. It was, well, it made for a fascinating contest. Yeah. You certainly had to work hard. I mean, I think in this day and age, we're all used to cricket that happens very fast, and whether it's T20 or one days, or even in the Australian summer. We had green top wickets where it was very difficult for the batters. But I found that a fascinating Test match. You had to work so hard to get your wickets. There was that afternoon when the reverse swing was happening, and it became difficult to bat. So it had those fascinating changes. But I like, and even the Australian bowlers say the same thing. They take more pride in getting wickets when it is difficult for them, when conditions aren't necessarily in their favour. So I liked that wicket. It would have been good, I think, if it had broken up a little bit more. But hey, there was certainly enough opportunity there for Australia to win that Test match. Had they held those catches, had two DRS decisions gone Australia's way and not the batter's way, that Test would have had a different result. So I think that was a fantastic wicket, and we got crowds in for 5 days, and the crowds loved it right through to the last ball. Definitely, crowd got everything that they wanted. But Peter, talking about Lahore Test now, the third Test match, what do you expect? Well, Australia doesn't know what to expect. I'd like to ask you, actually, what sort of wicket have you prepared for us here? I read in the papers and written reports myself, in fact, that the ICC curator has come out here, Toby Lumsden, the man who's in charge of all the different... I think we've lost cool curators, and perhaps there's an attempt to make the wickets a little spicier. Let's wait and see what happens. So, Peter, you must have seen great cricket innings being played all around the world by the Australians and the non-Australians as well. Where would you put this effort by Babar Azam yesterday and the day before? Where does it? Do you think it is placed when it comes to the top innings that you have seen? I tell you, when Babar Azam went out, I looked around and there was a young Pakistan fan behind me with his mouth open. I had my mouth open. I watched him walk off. I felt emotional. I really wanted that man to get 200. That was one of the better innings I have ever seen. I mean, he came in, what was the team? 2 for 20-something when he came in? He grabbed 21. That team by the scruff of the neck and dragged it back into the game, almost to the point where Pakistan threatened to win the game. That was a magnificent innings. You're a blessed country to have a man like that leading you. Equally, I think we're blessed because I think Pat Cummins is a magnificent captain. And what I like about both of those captains is they play the game in the right spirit. We don't see any of these spats, this ugliness, this sledging or confrontation. That cricket has been played in a really good spirit with a really good attitude, and it's very competitive. Boy, oh boy, is that man a talented batter. Well, it was very unlike contest that there was no sledging and nothing, and they were all good boys. It was like gentleman cricket going on. But your views about Mohammad Rizwan? Oh, well, what can we say about him? You have so much talent in this country. It doesn't seem fair. Every time we turn around, you have another great player, and equally him. That innings of his, of course, saved Pakistan from defeat after your captain was out. So that was a great innings. He's a great batter. You've got so much talent in your batting stocks and in your bowling stocks. It's such a shame that there hasn't been test match cricket here for so long, or top level test match cricket, and hopefully we'll see a lot more of it because Pakistan fans deserve the chance to turn up and see these guys up against the best players in the world. To see Rizwan and Babar up against Pat Cummins and Mitchell Starc and Nathan Lyon, and Josh Hazlewood didn't play this test match, but Josh Hazlewood is a very good bowler himself. So wonderful. It's just wonderful contest. It's great for cricket. It's great for world cricket.
Wonderful contest. Peter, coming to the sledging part, I'm sorry, I'm reverting back to the previous question. I mean, what has gone wrong with the Aussies? They're not supposed to be such like good boys. I mean, I remember one of my first memories of watching Australia play Pakistan was Dennis Lillee and Javed Miandad. I mean, just willing to bury each other in that cricket wicket and all. So is it like a change in the overall attitude of the Australian team, or maybe this series is just a one-off? Look, I think there's a number of factors at play, but one of them most definitely is a change in attitude of that Australian team. The Australian team was sobered by the experience and shamed by the experience of what happened in South Africa a few years ago when players were suspended for ball tampering. That brought shame on the nation. They had to reconsider their approach to Test cricket. And under Justin Langer, they decided to be a more humble team, to try and make themselves loved by the Australian public again, because there was a question mark about whether even the Australian public liked the way they played cricket. And the relations with opposition teams had grown very poor. There's a couple of other factors at play too. These players tend to know each other from T20 competitions around the world now. I watch training and I watch the players walk on and walk off. They're always talking to each other because they know each other quite well. They play together in the same teams in the PSL, in whatever other T20 league there is. And thirdly, you know, there's been a pandemic. It's been very difficult to play Test cricket. Australia has not played Test cricket overseas since 2019. So everyone's just happy to be playing Test cricket. Look, I love seeing cricket played in this spirit. To see people try really hard, be ultra competitive, but do it with a smile on their face, that's fantastic. And it sends a fantastic message to young people who play the game. I think at times in the past, Australia played cricket with a scowl, and they were a little harder to love, even for Australians. Definitely. And Peter, moving on further, not talking about cricket anymore, Adil, this is not the first time that Peter has been here to Pakistan. In '94, Peter was here in Pakistan, but as a tourist. I want you to narrate your journey, Peter. Oh, gosh, why do you keep bringing that up? It's just to demonstrate how old I am, isn't it? I'll tell you about my journey. This is possibly the longest I have spent in Lahore because I was in India. And I came across the border from Amritsar, walked across the border back through that line of control or whatever it is there with the guards marching up and down and scowling at each other like our cricketers used to do. I turned right and I went up to Pashtunkar, you call it now, didn't you? But back then it was the Northwest Frontier Province. Yeah. I went straight up to Peshawar, and from Peshawar I branched out. I went to Dara, I went to Deer, went to Chitral. I spent a lot of time in the Kailash Valley, all those fascinating places up north. I was here for 2 or 3 months, and I really enjoyed it. And it broke my heart that I never got to come here and watch Test match cricket. So this is pretty special for me. This is ticking one of those boxes on the bucket list of life. Wow, Peter, again, I would say welcome to Pakistan. You've heard this phrase a lot of times now, but I hope you just have a wonderful tour here, and thanks a lot for all your time, Peter. And thank you for your hospitality and welcome. Thank you, Peter. Thanks a lot. So it was Peter Lalor with मज़ेदार हमारी डिस्कशन हुई, और ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि किस तरह क्या पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ गुड बॉयज होने की बात की, वाकई ऑस्ट्रेलिया हैज दैट चेंज ऑफ एटीट्यूड नाउ, वरना तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो और स्लेजिंग ना हो, दिस इज लाइक वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। इसमें थोड़ा सा मार्नस लेबोशेन में थोड़ी सी वो है, इसमें ये नजर आ रहे हैं मुझे आसार के आगे चल के बड़ा स्लेजर बनेगा ये, शरारत है वो है, लेकिन अगर आप देखिए सीरीज खत्म होने के बाद भी, आई मीन वो जो एक आइकॉनिक पिक्चर विच आई थिंक वुड बी द पिक्चर ऑफ द ईयर मेंस क्रिकेट में, जिसमें जब बाबर जा रहे हैं, ही इज लुकिंग बैक और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं वो क्लैप कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सवेरा, आई थिंक हम अपने शो में शायद 1 दर्जन बार ये बात बोल चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के पाकिस्तान आने से पहले जो इनका एटीट्यूड इस सीरीज़ के हवाले से बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि डिप्लोमैट लाइक था, सिफारतकारी की जैसी मुहिम पे जा रहे हो एंड ऑल, एंड दे वांटेड टू प्ले गुड क्रिकेट। और यही चीज़ जो है वो आपको, जिस तरह खिलाड़ी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन द क्रीज, व्हेन दे इन द ग्राउंड, उसके बाद जैसे कल भी वीडियो आई है कि मैच के बाद जो है वो शान मसूद और मानस लेबोशाइन और 3-4 और प्लेयर्स खड़े हुए बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन एंड गुड टू सी दैट हैपनिंग। बिल्कुल, और मतलब ये देख रहे हैं हम कि किस तरह
एक अच्छा मुकाबला भी हुआ, एक अच्छी स्पिरिट में ये पूरा टेस्ट मैच खेला गया। आखिरी टेस्ट मैच रह गया है, क्या हम एक्सपेक्ट करें क्या नहीं। डिस्कशन के लिए हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आकिब। जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। एंजॉय किया आपने सेकंड टेस्ट मैच? कम देखा, बट आई थिंक जो लास्ट मोमेंट से वो मैंने देखे। देखिए, इस तरह का टेस्ट मैच पाकिस्तान के पास ये मौका जरूर था, क्योंकि कराची में पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े क्रूशल मैचेस पाकिस्तान ने कराची में जीते हुए, क्योंकि यहाँ की जो पिच है उसमें तो जो फैसला हो जाता है ज्यादातर, क्योंकि पिच अगर फ्लैट भी हो तो जो सी ब्रीज है वो आप टी के बाद वो काफी मदद देती है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी तरह बॉल को मैनेज करके रिवर्स करा लेते और पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था, क्योंकि जिस तरह की पिच थी ये 5वें दिन बड़ा मुश्किल था उसके ऊपर बैटिंग करना। और हैट्स ऑफ टू बाबर एंड रिजवान एंड अब्दुल्ला ने शुरू में जो इनिंग खेली, एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। जो ऐसी एफर्ट आपको 10-15 साल बाद, शायद इतनी देर बाद कोई ऐसी एफर्ट नजर आती है। तो बाबर आजम, ज़ाहिर है आपने आकिब जिक्र किया उनका, ज़ाहिर है बहुत प्रेशर में थे। पाकिस्तान सुपर लीग, आप तो चलें माशाल्लाह जी विनिंग जो कॉम्बिनेशन और टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाबर उसके बिल्कुल पिक्चर की दूसरी जानिब थे। कितना मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए कि ऐसे पैच से निकल के इस तरह की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देना? देखिए, बांग्लादेश में भी सीरीज हुई, उसमें भी वो रन ना कर पाए, बट ऐसा टाइम जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं उनके लिए वो जल्दी वापस आ जाते हैं इनके अंदर। और जितनी ज़बरदस्त उनकी टेक्निक है, इनके जो बैड पैचेस हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। वेयरएज़ अगर आपकी टेक्निक उतनी सॉलिड ना हो तो फिर आपका पैचेस लंबे चले जाते हैं। और बाबर जैसा प्लेयर जो है वो बड़ी जल्दी वापस आता है, और उसने साबित किया कि इस जैसी इनिंग उसके अलावा खेलना बड़ा मुश्किल है किसी पाकिस्तानी का, दुनिया में किसी प्लेयर का भी, और इतनी देर ऐसी पिच के ऊपर बैटिंग करना। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये तो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी गलतियां भूल जाएं, सब अंडर दी कारपेट कर दें। ठीक है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ टेस्ट मैच था जिसको हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए। थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करते हैं, पिंडी टेस्ट की तरफ जाते हैं। पिंडी पिच पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बट एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ऐसा लगा कि जिसने ज़्यादा डीमोटिवेट किया हमारी टीम को, दैट वाज कि अगर फ़हीम अशरफ और हसन अली नहीं होंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे पास और कोई है ही नहीं डोमेस्टिक में, और उनकी वजह से हमें पिच ऐसी बनानी पड़ी कि सारी हमारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं लाहौर कलंदर्स का, यू आर हेडिंग दैट। आपको लगता है कि हमारे पास टैलेंट है ही नहीं, मतलब फ़हीम अशरफ जैसा या हसन अली जैसा? देखिए, उसमें अगर आप PSL में भी हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो ऑलराउंडर्स हैं बहुत कम है, और उसकी वजह जो आपकी टेस्ट मैचेस है उसमें तो सारा डिपेंड करता है कि जो आपने 6 टीमें कर दी, इतने टीमें बंद करके, और जब उसकी सिलेक्शन होती है तो वहाँ हैरानी होती है कि वो ऐसे प्लेयर्स वहाँ आपको डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो ऐसे प्लेयर्स टीमों में खेले हैं पूरा सीजन जिनका कभी चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कभी खेल सके। तो जब आपने 6 कर दी हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन इस तरह से बनानी चाहिए कि हर एक टीम के अंदर एक रिस्ट स्पिनर को लाएं और उनको ऑलराउंडर बनाएं, क्योंकि देखिए अब जो गेम जिस तरफ चली गई है, आपको बॉलिंग के साथ बैटिंग भी आनी चाहिए, और यही आगे जाके क्रिकेट का फ्यूचर है कि आपके रिस्ट स्पिनर्स आपके पास अच्छे हों जिससे कि आप विकेटें ले सके। यासिर शाह के बाद किसी ऐसा स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं है जिसने को 10 विकेटें लेने की उसमें स्किल्स हो। तो जब भी आप हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को तो आप टर्निंग पिच के ऊपर ही हराने का चांस है आपका, क्योंकि अगर आप घास वाली पिच बनाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं फास्ट वो बड़े मैच्योर हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तानी बॉलिंग अभी आप देखें तो बहुत कम इनके टेस्ट मैचेस हैं, अभी सारे लोग जो हैं अपने करियर के शुरू में ही हैं।
एब्सोल्युटली। अच्छा, ये हमारे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है। पाकिस्तान की जो ओडीआई और T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और इसमें आपको हम बताते ये चलें कि आसिफ आफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन बैटर मोहम्मद हारिस जो हैं वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। दोनों की अच्छी कारकर्दगी थी पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसकी वजह से ये दोनों अब स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। और T20 में इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ भी जो हैं ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम इंजरी, हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी, और वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर बाद आपको हम स्क्रीन पे भी इनके नाम जो है वो बता देंगे। सो आसिफ आफरीदी, अब आकिब आप ज़ाहिर है खुद एज आई सेड PSL में ज़ाहिर है आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं। आसिफ आफरीदी और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इनकी परफॉर्मेंसेस आपने बड़ी क्लोजली देखी होगी। गुड सिलेक्शन? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजवान के बाद कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है कि जिसको आप स्पेशली T20 में खिलाएं, क्योंकि सरफराज हैं बट आई थिंक कि आगे बढ़ना चाहिए, और हारिस ने अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बड़े एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। मुश्किल है कि उनका प्लेइंग 11 में आए नाम आना उनका, और जो अफरीदी हैं, क्योंकि नवाज इज डूइंग वेल, शादाब है, नवाज है, ये आपके मेन बॉलर्स हैं। और दूसरा आपके जो ओपनर्स हैं, आई थिंक फ़खर जमान ने जिस तरह से बैटिंग की है उसको और बाबर को जाना चाहिए, मेरे ख्याल में ओपन पे जाना चाहिए, रिजवान नंबर 3 आ जाए, और उसके बाद फिर आपकी जो बैटिंग इनकी चॉइसेस हैं वो मिडल में आ सकती हैं। बट आई थिंक यू कांट इग्नोर फ़खर, जिस तरह से उन्होंने PSL में बैटिंग की। बिल्कुल, फ़खर तो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और डेफिनेटली फ़खर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पर ये शॉर्टर फॉर्मेट से पहले हम वापस तीसरे टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं, तीसरे टेस्ट मैच में आप कोई तब्दीलियां देख रहे हैं? एक बहुत शोर मचा, बहुत आवाज़ इसकी उठी कि इमामुल हक जो हैं वो जंप करके आगे आ गए। 2 के शान मसूद इस वक्त जो है वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे थे और शान मसूद की बारी बनती थी। आपको लगता है कि अब तीसरे टेस्ट में आपको शान मसूद खेलते हुए दिखेंगे? है, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला बैटिंग कर रहा है और इमाम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की पिंडी टेस्ट में, तो इस तरह से चेंजेस का फ़ायदा नहीं है। आई थिंक शान इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, मुझे तो वो हमेशा सबसे बेहतर वो लगता है। टेक्निकली बहुत साउंड है, एग्रेसिव भी है, खेलना शुरू हो गया। लाहौर की पिच अभी जो टीवी के ऊपर उसकी प्रिपरेशन जो चल रही है, जो ICC से क्यूरेटर भी आए हैं, तो उसमें ये उतनी फ्लैट बनेगी नहीं इनसे, थोड़ा सा घास उसमें नज़र आ रहा है, और लाहौर की जो पिच है वो बैटिंग में सबसे बेहतर होती है, तो उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है। एक तो ड्रॉ ही के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, या पाकिस्तान अगर 148 जैसी फिर उस तरह की एक इनिंग में फेल हुए तो पाकिस्तान हार सकता है, क्योंकि उस टीम को, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जो 20 विकेटें लेने वाले आपके पास बॉलर नहीं है। जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को UAE में भी हराया था, तो उसमें वाज पार्ट ऑफ द टीम जो 70 से 75% जो विकेट्स थी वो स्पिनर्स की होती थी। सईद अजमल पहले, और उसके साथ अब्दुल रहमान थे, बाद में यासिर शाह ने उनका साथ दिया। तो उस तरह का स्पिनर जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। आखिर ये जो आप ही ने वैसे जिक्र किया, तो आपसे ज़रा इस पे भी इनपुट हम ले चलते हैं कि जो ICC से इनके चीफ क्यूरेटर बुलाए गए हैं, अब 3 दिन ये विकेट की तैयारी में मदद करेंगे। क्या इससे कोई विकेट के खदोखाल में तब्दीली आ सकती है इतने कम अरसे में? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि पिच जो है वो उसमें अगर बाउंस लाना है तो वो जो आपकी सॉइल है उसके अंदर जो क्ले कंटेंट है उसका ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो उसको तो बढ़ नहीं सकता। दूसरा जो उसके ऊपर घास है, अभी PSL में जो मैचेस हमने उसके ऊपर खेले हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लो और घास नाम की चीज़ नहीं थी। तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा ग्रास रखते भी हैं तो पहला दिन वो कुछ हल्का फुल्का कुछ सीम या कुछ स्विंग होने के चांसेस, उसके बाद वो भी फ्लैट हो जाता है। क्योंकि ये जो आप ग्रास यूज़ करें, जो आप जब 90s में, उससे पहले हम कदाफी स्टेडियम या पाकिस्तान की पिचेस पे जो खेलते थे, तो वहाँ पे
ढाका ग्रास था, वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें बॉल लगती है तो थोड़ा सा बॉल स्किड करता है। अब ये फाइन ढाका है जो बिल्कुल पतला है और जरा सा उसके ऊपर ड्राई हो तो बिल्कुल उसमें जान नहीं बचती। तो इसलिए 3 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, बस एक जो लोगों के लिए, वो लोगों की कंजम्पशन के लिए उन्होंने बुलाया कि चलो यार हमारी जान छोड़ो, पूरा ले यार, उससे भी देखो नहीं बनी। बट ये क्या हुआ है अचानक से आकिब? क्या हमारे पास क्यूरेटर्स ख़त्म हो गए हैं? पाकिस्तान में पहले भी तो पिचेस बनती रही हैं, बहुत ही बुरी पिचेस होती थी हमारी, हमें क्यूरेटर भी बाहर से बुलाना पड़ रहा है, हम ड्रॉप इन पिचेस भी मंगाने की बातें कर रहे हैं, हम बाहर से सॉइल मंगाने की भी बात कर रहे हैं कि जी सॉइल को मिक्स करेंगे, लैब में जाके कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या अचानक से क्या हो गया पाकिस्तान की पिचेस? देखिए, अगर आप देखें तो पिंडी की पिच की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जब आप ग्रास छोड़ते हैं तो वो थोड़ा तेज खेलती है। अब ऑस्ट्रेलिया को आप घास तो दे नहीं सकते, आपको 3 दिन में मैच हरा देंगे। तो जब से मैंने तो होश संभाली, ऐसी ही पिचेस होती हैं। कराची वाली पिच तो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सूट करती थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक इनिंग में कोलैप्स कर गया। अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था कराची वाला। अब हमें पिच क्यों नहीं पसंद? देखिए, आप इंडिया में जाती है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाती है, तो अपनी मर्जी को इतनी टर्निंग पिचेस बना के वो जीत लेते हैं। पाकिस्तान वो भी नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास स्पिनर्स ही नहीं है। तो अलमिया आपकी जो चॉइसेस हैं वो है, पिच नहीं है। पिच तो सारी जिंदगी ऐसे ही हुए हैं, ऐसी पिच कराची जैसी होती है। और वकार वसीम वो उस जमाना होता जहाँ, अब तो जाहिर है बॉल बनाना में बड़ा मुश्किल, उन्होंने थूक भी लगाना मना कर दिए। अब जब तक उसके वो थूक नहीं लगेगा तो वो जो बॉल है वो एक तरफ से हैवी कैसे होगा और रिवर्स कैसे होगा। एक तो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ा है। पाकिस्तान की सारी जिंदगी से जितनी विक्ट्रीज हैं वो रिवर्स स्विंग और स्पिन बॉलिंग के ऊपर है। स्पिनर आपके पास है नहीं उस लेवल का, और बॉल जो है वो रिवर्स नहीं हो रही, तो बहुत कम चांसेस है। और अगर आप पर्थ की पिच दे दें लाहौर में बिछा के ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो आई एम सॉरी कि ये नहीं हो सकता। और नहीं वैसे भी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि वो अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आपके पास फिर चॉइसेस नहीं है, बॉलर नहीं है वो उनको 20 विकेटें ले सके। और नहीं ऐसे ही कुछ लग रहा है कि कुछ पीसीबी भी कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है इस मामले के ऊपर। ये विकेटों की जो डिबेट जारी है, बिकॉज रमीज राजा साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाई जा रही है वो बिछाई जाएगी। कैसे मंगाएंगे वैसा? ड्रॉप इन पिचेस, ड्रॉप इन पिचेस के आइडियाज आ रहे हैं ऑल, और मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक वी आर ओवर रिएक्टिंग, और शायद आईसीसी ने भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया जो उन्होंने पिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट दिया। कि क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थिंक सभी कुछ ओवर रिएक्ट कर गए इस पिच के मामले में। देखिए, उसमें आपका जो चेयरमैन है उनका बयान देना नहीं बनता था। जैसी भी पिच है, पाकिस्तान की पिचेस ऐसी ही होती हैं। कब यहाँ पे सरों में बॉल लगे और क्या हुआ? कभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा जब कोई ऐसी टीम आती है जिससे आप बॉलिंग से खौफ ना आए तो हम घास छोड़ देते हैं, तो वो पहले 2 दिन थोड़ा सीन करती है, उसके बाद फिर सीधी हो जाती है। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो तकरीबन सारे मैच ड्रॉ हो गए थे, 5-5 स्कोर बन रहा था मुल्तान में, पिंडी में। हम जो ड्रॉपिंग पिचेस और जो सॉइल की बात हो रही है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वो वेरिएशंस लानी चाहिए। आप वहाँ से अगर मिट्टी मंगाते हैं, पर्थ से मंगाए, वो करीब भी है, उसकी मिट्टी भी अच्छी, क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो 4-4, 3-3, 4-4 जो स्क्वायर आपका है उसमें वो पिचेस बनाए और पाकिस्तानी पिचेस भी हों। और क्योंकि जब डोमेस्टिक में आप खेलोगे, 4 डे मैचेस खेलोगे, 1 डे खेलोगे, तो आपके प्लेयर्स को बाउंस वाली पिचेस की प्रैक्टिस होगी। अब आप ये नहीं कर सकते कि इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए या न्यूजीलैंड आए तो आप उनको पास की पिच दे दें ताकि आप जल्दी हार जाएं। आपकी स्ट्रेंथ वही रहेगी, लेकिन आपने अपनी जो टीम है, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनको बेहतर करना है। स्पिन बॉलर यासिर शाह को फिट करें या वैसा बॉलर लेकर आए, तो आप देखते कि इसका नतीजा डिफरेंट होना था सीरीज का। अगर सईद अजमल होते फिर डिफरेंट होना था। तो आपके पास बॉलर नहीं है। पाकिस्तान नीड्स अ गुड स्पिनर्स, 2 स्पिनर्स चाहिए जो कि अटैकिंग स्पिनर्स हो, विकेट टेकर्स हो, और रिवर्स कराने का कोई तरीका ढूंढे। बिल्कुल, आपने जैसे लेग स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब तीसरे टेस्ट में जाहिद महमूद जगह बना सकते हैं नुमान या साजिद में से किसी की जगह?
देखिए ये जो लेग स्पिनर है इनका टेस्ट मैच के अंदर अब देखिए तो बहुत कम आपको नजर आते हैं। आदिल रशीद वो भी नहीं खेलते, कम खेलते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ये ज्यादा T20 वनडे में ज्यादा सक्सेस उनको मिल जाती है, क्योंकि जो बैट्समैन है वो इज नॉट वेटिंग, ही इज अटैकिंग। जब अटैक के ऊपर जाते हैं तो आपको एक लूज बॉल के ऊपर टाइम विकेट मिल जाती है, बट टेस्ट मैच के अंदर वो वेट करते हैं, और अगर आप 100% एक्यूरेट नहीं है तो जो लेग स्पिनर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक चौका आराम से खा लेते हैं, एक सिंगल हो जाती है, तो 4 एंड ओवर अगर आप रन्स दे रहे हैं तो आप टीम के लिए बड़ा नुकसान होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितने एक्यूरेट हैं, क्योंकि एक लूज बॉल ओवर में जब आप वेट करके खेलते हैं तो बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए। आई हैव नो आइडिया कितने एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट है तो फिर उनको जरूर खिलाएं, क्योंकि ये बॉलिंग ऐसी पिचों के ऊपर जहां रिवर्स भी नहीं हो रही, वो स्वेट और धूप नहीं लगाने दे रहे, तो वो उसका कम चांसेस है कि रिवर्स स्विंग हो। तो पाकिस्तान के पास 20 विकेटें लेने वाले बॉलर नहीं है इस वक्त। ऑलराइट, चलें जरा टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। एंड ज़ाहिर है आकिब जावेद हो, लाहौर कलंदर्स की बात ना हो, PSL 2002 अभी रिसेंटली खत्म हुआ, एक महीना पहले दी एंटायर नेशन वाज कैप्टिवेटेड। 2022 एंटायर नेशन वाज कैप्टिवेटेड बाय द PSL। सो भाई आकिब, अब तो वो कहते हैं ना माशाल्लाह, वो जो एक कमी रह गई थी वो भी अब पूरी हो गई है, और लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी कैबिनेट पे जो है ना अपनी सजा ली, और माशाल्लाह पाकिस्तान कहाँ लेकर जा रहे हैं ट्रॉफी, वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर लेकर जा रहे हैं जी हर जगह। सो ये ज़रा थोड़ा सा हमें इस जर्नी में लेकर जाए ना, यानी कि लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम जो 4 साल इब्तदाई आखिरी नंबर पर आती है, जीते हुए मैचेस हार जाती है, एंड सडनली दे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि सब जिसको हराना चाहते हैं और हरा नहीं पा रहे हैं। सो ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हुआ? देखिए उसमें बात यह है कि जब लीग शुरू हुई तब मैं पहले सीजन तो नहीं था उनके साथ, तो जो आपकी जो पहली टीम सिलेक्ट होती है उसमें जो ड्राफ्ट में आपकी जिस तरह बारी मिलती है, तो इनकी बारी जो थी बहुत कम नीचे थी। आपको पता, अगर आप अभी भी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि पाकिस्तान में जो टॉप 10-12 प्लेयर्स जो है वो कितने 12 होंगे 14 होंगे जो मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर्स है, वो जिसकी बारी बेहतर थी उसने सारे उठा लिए। इस्लामाबाद की पहली बारी है, उनकी टीम बहुत मजबूत बन गई, जालमी की मजबूत बन गई, ये टीमें 2 मजबूत टीमें बन गई, कोयटा की अच्छी टीम बन गई। अब जैसे जैसे अब प्लेयर अगर होल्ड किए हुए हैं तो वो अपने की प्लेयर्स ड्राफ्ट में अगले साल भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको फिर क्या चॉइसेस, 2 चॉइसेस थी कि अब वेट करके बैठे रहे, तो फिर हमने ग्रास रूट पे गए, हमने अपने प्लेयर्स को खुद से तैयार किया, क्योंकि फखर जमान को किसी टीम ने नहीं रखा था 2016 के अंदर, 15 को मेरा ख्याल 15 को किसी ने नहीं रखा था, तो उनको हम लेकर आए, शहीद अफरीदी को लेकर आए, हारिस राउफ को लेकर आए, डेविड वीजे जो कि किसी लीग में नहीं खेलते थे उनको हम लेकर आए, और उनको रोल एक ऐसा दिया कि जिसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और फिट इन हो गए। इसी तरह फॉरेन प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो जो टीम है जो भी मुल्तान से खेल रहे थे, इनको हमने $5,000 में रखा था, सिंगापुर के प्लेयर ना भी उन्हें जाने। तो आपको फिर सारा साल एक रिसर्च करनी पड़ती है, आपको लोगों के साथ सारा साल पिछले 4, 5, 6 साल से हम ग्रास रूट में पूरे पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढते हैं, फिर उसको नर्चर करते हैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो ये टाइम लगना था। अब आप देखें कि जिन टीमों ने मेहनत नहीं की ग्रास रूट पे और अपने चॉइसेस उनके पास कम है, तो अब कराची की जो टीम है अगर उसमें आप देखें तो 3-4 प्लेयर्स के वो रिटेन किसको करेंगे, और नए प्लेयर आप डोमेस्टिक में देखें तो इतने कहाँ से आएंगे। तो अब हमने कहा था जीतेंगे तो एक प्रोसेस से जीतेंगे, और जब लाहौर जीतेगा तो फिर असल में पता चलेगा कि PSL की वैल्यू क्या है, और उसी वैल्यूज को लेके जो हम कहते हैं कि मैं हूँ कलंदर दिल से, हम बातों से नहीं या किसी को दिखावे के लिए नहीं करते, एक्चुअली अ फैमिली, हमारा कल्चर एक फैमिली जैसा है। और अगर हम उनके जो माँ बाप हैं उनको अगर कैसे हो सकता है कि हम इज्जत ना दें, उन्होंने उनके बच्चे ने
सारे पाकिस्तान में खुशियां बिखेरी, तो हम समझते हैं हमारा हक है कि उनके घर जाएं, उनके माँ बाप का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जिन्होंने लोगों के दिलों में खुशियां बांटी। हाँ, नहीं डेफिनेटली, मतलब जिस तरह अभी रिसेंटली ज़मान खान के घर भी जो है वो ट्रॉफी गई और उनके घर बनाने की भी बात हो रही है, विच इज़ लाइक द सपोर्ट, जो एक फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और वो सपोर्ट आप लोगों ने जिस तरह किया। इनफैक्ट जिस दिन फाइनल में लाहौर कलंदर्स खेल रही थी, फाइनल शुरू होने वाला था थोड़ी देर में, राशिद खान हमारे साथ यहाँ गेम सेट मैच के सेट पे मौजूद थे, कनेक्टेड थे हमारे साथ, और वो कह रहे थे कि अगर तो मार्जिन होता थोड़ा सा तो मैं उड़ के आ जाता लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने के लिए। तो इस तरह का बॉन्ड डेफिनेटली आप सवेरा, इफ यू रिकॉल, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी और टीम के बारे में पीएसएल में खेलना सोच ही नहीं सकता मैं, सो वो इतनी अटैचमेंट उनकी जो थी वो लाहौर कलंदर, वो सच अ ब्यूटीफुल कमेंट। देखिए, उन्होंने ऑन कैमरा ये भी कहा था कि अगर पीएसएल खेलूंगा तो सिर्फ लाहौर कलंदर से खेलूंगा, और अगर लाहौर कलंदर को, अगर समीन राना को मुखातब हो गया था कि समीन भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए प्लाटिनम डायमंड की, तो मैं लोएस्ट कैटेगरी में भी खेलने को तैयार। तो ये एक रिलेशन है जो अगर आप लोगों को प्यार दें, इज्जत दें, तो पैसे से नहीं सिर्फ आप लोग अट्रैक्ट कर सकते, उनको इज्जत दें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनसे मोहब्बत करें, दिल से करें। वो एक दिन की एक्टिंग हो सकती है, एक वीक की एक्टिंग हो सकती है, ओवर द इयर्स एक्टिंग नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन बना के बिल्कुल, ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है। आकिब, जाते जाते एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत दफ़ा ये बात होती है, नहीं जी टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट नहीं है। आप लोग क्योंकि खुद अपने ग्रास रूट लेवल पे काम कर कर अपने प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, विच इज़ लाइक पैरेलली पीसीबी को जो काम करना चाहिए वो पैरेलली लाहौर कलंदर्स कर रहा है, और पूरे साल एक वाहिद फ्रेंचाइज है पीएसएल की जो ये काम करती है। क्या पाकिस्तान में क्रिकेटिंग टैलेंट ढूंढना एक मुश्किल काम है? देखिए, टैलेंट ढूंढने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड में जाना पड़ेगा, और इसमें सबसे जो मुश्किल काम है वो है आपका ऑनेस्ट होना। क्योंकि आप जब भी ये ट्रायल्स के लिए जाते हैं, वहाँ वही सिफारिश कल्चर चल जाता है। जो आप 6 टीमें हैं, आपने इतनी टीमों कम करके 6 रख दी हैं, उनकी जो सिलेक्शन है वो ही सही नहीं होती। तो जो एक टैलेंट आता भी है तो वो उसको ऊपर आने नहीं देते। ये वाहिद पीएसएल है कि इसमें कैसे टैलेंट हर साल आपको मिल जाता है। उसकी वजह ये है कि अपनी जो टीमें वो बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए जाना होता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि सिफारिश मानने का, इसलिए पीएसएल से टैलेंट बाहर आ जाता है। ये हर साल अपनी 4 डे भी कराते हैं, 1 डे भी कराते हैं, T20 कप भी कराते हैं, वहां से कभी टैलेंट नहीं आया, क्योंकि वहां सिलेक्शन का जो मेयार है उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। बिल्कुल। I think very good talk, आकिब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम कंटिन्यू करते इस डिस्कशन को, लेकिन हमारा प्रोग्राम खत्म करने का वक्त। थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर टैलेंट हंट फॉर लाहौर कलंदर्स। आप, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान को और भी ऐसे प्लेयर्स जो है लाहौर कलंदर्स देता रहे। How indebted we are to them, Savera. Exactly. मतलब आप बात करें, we talk about Shahid Afridi, we talk about Fakhar Zaman, we talk about Haris Rauf, we talk about Zaman Khan. There's so many players जो कि लाहौर कलंदर्स के इस प्लेयर डेवलपमेंट से निकलते हुए दिखते हैं, which is commendable कि ये फ्रेंचाइज पूरे साल काम करती है, and all the वेरी बेस्ट ऑफ लक टू देम कि अगले साल हमें फिर एक नया सितारा दिखे, एक नया टैलेंट दिखे लाहौर कलंदर्स की तरफ से। आई नो कि इनकी पाइपलाइन में कुछ लड़के अभी हैं जिस पे ये लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वीड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आपने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।